थे जो अपन ने फाइंड आउट किए. नाउ दिस इज द नेक्स्ट न्यूमेरिकल. द फॉलोइंग बेयरिंग्स which is displayed on the screen. The following bearings taken on a closed compass traverse. तो traverse दिया है. It is mentioned that it is a closed traverse. The interior angles and the correct compute the interior angles and correct them for the observational error. So interior angles find out करने, assuming the observed bearing of the line CD is the corrected one. Okay, तो CD के जो bearings है that are corrected, that means the difference between the forebearing and back bearing of CD is the corrected one. तो अपन को क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल, इंटीरियर करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल अपन को फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो हियर कंप्यूट द इंटीरियर एंगल and correct them for the observational error. It is mentioned here. So we will use that included angle method. Okay. So देखो, see how we have used that method. Now in all the numericals nowhere they mention that which method we have to implement. कहीं भी mention नहीं किया है. Okay. So here also what they that compute the interior angles and correct them for the observational error. Okay. So इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना है और उनको करेक्ट करना है. तो ऑब्वियसली इन दिस स्टेटमेंट इट इज मेंशन दैट यू स्टार्ट इट फ्रॉम द इंक्लूडेड एंगल्स. ओके. बट डायरेक्टली आपको मेंशन नहीं किया है कौन से मेथड से सॉल्व करना है. ठीक है. सो हियर यू नीड टू फाइंड आउट द interior angle and you need to do the correction on that included angle. ठीक है. So now this is the table in which the four bearings and back bearings are given. ठीक है. So by so now see AB, for line AB the four bearing is 80 degree. It will come in the first quadrant. So I develop this line in the first quadrant. ठीक है. Then four bearing of BC is 120 degree. That means it will come in the second quadrant. तो approximately मैंने 120 means यहाँ second quadrant में यहाँ उसको 120 draw किया है. Then the CD line is of a 170 degree. Again it will come in the second quadrant, a little bit tilted than the first one. तो यहाँ मैंने वैसे draw किया है. ठीक है. Then next D. D पॉइंट पे D लाइन का फोर बेरिंग है 230 डिग्री. इट विल कम इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहाँ मैंने वो थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया है. एंड द लास्ट वन विल कम इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो मैंने उसको फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करके आई कनेक्टेड दैट लास्ट लाइन अगेन टुवर्ड्स द A पॉइंट and in this way I generated the closed traverse. ठीक है. तो अभी अपन को क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल फाइंड आउट करना है क्योंकि इट इज मेंशन इन द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट इटसेल्फ. सो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द एंगल ए. तो एंगल ए, टू गेट दिस इंक्लूडेड एंगल ऑफ द एंगल ए, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिडक्ट दिस फोर बेरिंग. ये ए बी का फोर बेरिंग मुझे डिडक्ट करना है. किसमें से डिडक्ट करना है, आई हैव टू डिडक्ट इट फ्रॉम ए बैक बेरिंग ऑफ ई ए, because our survey progress is from A to B to C, then D to E, and finally we will approach towards A. Then for our this line, the four bearing, this line EA का four bearing आएगा this one. E is the first point for the EA line and the A is the final point. So the reading is taken at the E point will be the four bearing and reading is taken at A point is the back bearing for EA line. ठीक है. तो EA line का जो back bearing आएगा ये वाला मीन्स A के यहाँ का रीडिंग, तो ये कितना आता है 130 डिग्री. 130 डिग्री 15 मिनट. सो 130 डिग्री 15 मिनट से मैं फोर बेरिंग ऑफ AB डिडक्ट करूंगी. So here on the screen, I found out the four included angle of AB. ठीक है. So 130 degree minus 15 minutes. Sorry. 130 degree 15 minutes minus 80 degree 10 minutes. Okay. So after deducting these two bearings, I got the included angle at A is as a 50 degree 5 minutes. ठीक है. Now we'll move towards the next angle, angle B के यहाँ. तो एंगल बी के यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस इज द बैक बेरिंग ऑफ ए बी लाइन. सो
back bearing of AB line minus 4 bearing of BC line. ओके, ये बैक बेरिंग ऑफ BA लाइन में से मुझे BC लाइन को माइनस करना है to get this included angle. Okay, so the back here, the back bearing of a BA, back bearing of a BA line minus 4 bearing of BC line. So back BA line का back bearing क्या आता है 259 डिग्री. Okay, and BC line का 4 bearing क्या आएगा, BC का 4 bearing 120 डिग्री. So I deducted that and I got the included angle at B it as 138 degree 40 minutes. ठीक है, now we'll move towards the next angle. So we'll find out the back bearing to get the included angle at C. What we will do, we will deduct the back bearing of BC. ये back bearing of BC will deduct. So uh, uh, deduct 4 bearing of CD from that back bearing of BC. Okay. So how we will do? We'll do that back bearing of BC minus 4 bearing of CD. ये CD का 4 बेरिंग उसमें से माइनस करेंगे तो बैक बेरिंग ऑफ BC कितना आता है, इट इज 301 डिग्री 50 मिनट्स माइनस 4 बेरिंग ऑफ CD, तो 4 बेरिंग ऑफ CD इज 170 डिग्री. ठीक है, सो ये दोनों को डिफरेंस फाइंड आउट किया एंड वी गॉट द इंक्लूडेड एंगल एट C इट एज 131 डिग्री 0 मिनट. ठीक है, now we will move towards the next one. We have to adopt the same process. Again, first we will find out the back bearing of a CD. ये पूरा back bearing of CD वो कितना आता है, here 350 degree 50 minutes. So back bearing of CD minus 4 bearing of DE. So DE का 4 bearing कितना है 230 degree 10 minutes. So 350 degree minus 230 degree. So 350 degree minus 230 degree. So we will get the included angle at D it as a 120 degree 40 minutes. Okay. Similarly, we did it for the last remaining angle. ठीक है, तो उसमें भी previous line का back bearing and next line का 4 bearing डिडक्ट करना है. So the previous line is DE line. So DE का बैक बेरिंग कितना आता है 49 डिग्री माइनस AE का 4 बेरिंग, इसका 4 बेरिंग वो कितना आता है 310 डिग्रीज. ठीक है, सो 49 minus 310 degrees. So here देखो ये जो आएगा ये दिस इज द बैक बेरिंग. ओके, ये और ये अपन ने ये 4 बेरिंग ये है. ठीक है, सो बैक अपन को करना क्या है, बैक बेरिंग में सॉरी यस बैक बेरिंग व्हाट वी नीड दिस इंक्लूडेड एंगल एट ई के यहाँ का इंक्लूडेड एंगल चाहिए. तो अपन को क्या करना पड़ेगा, how we will get that included angle, this is the total angle, this is the you can say कि 4 bearing of EA, ये 4 bearing of EA we will get. okay, उसमें से जब आप ये बैक बेरिंग माइनस करोगे सो वी विल गेट दिस रिमेनिंग एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल वी विल गेट. ठीक है, वो एक्सटीरियर एंगल वी विल डिडक्ट इट फ्रॉम द 360 and then we will get that interior angle. Understood? From the diagram, you can easily find out how we will get the included angle at E diagram, at E station. Okay, the same way I did it over here on the screen. 49 jo tha, that is the, I'm not able to place my cursor on that last line. So because of that, this that tab image get pop up. So wo nahi kar pa rahi. You just see on the last line. The angle at E कैसे find out किया? So back bearing at ED that is 49. ठीक है, minus 310 degree. So from this I will get exterior angle. So that exterior angle I need to deduct it from 360 to get the interior angle. ठीक है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल आएगा दैट आई द साइन ऑफ दैट एक्सटीरियर एंगल आई विल गेट एट माइनस साइन. सो मैंने 360 में उसको ऐड किया एंड आई गॉट द इंटीरियर एंगल इट एज अ 99 डिग्री 10 मिनट्स.
So everyone understood how I found out this E angle or included angle at E. मैडम Yes, ma'am. अब पहला हाँ, वाला एंगल ए वाला फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? वो 130 डिग्री 15 मिनट्स कहाँ से आया वो, मतलब वो वो पीछे वाला एक्सप्लेन से करो फर्स्ट। हाँ हाँ ओके, 1 सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन। जस्ट देखो, ये फर्स्ट एंगल में क्या है, आपको ये इंक्लूडेड एंगल, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा मुझे, ए ये जो ई ए लाइन का जो एंगल आएगा, ये एंगल, उसमें से ए बी का ये एंगल डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो ई ए का ये वाला आता है बैक बेरिंग। तो ई ए का बैक बेरिंग कितना आता है, दिस वन, 130 डिग्री 15 मिनट। सो ई ए का बैक बेरिंग आता है 130 डिग्री 15 मिनट। सो 130 डिग्री 15 मिनट से मैंने ए बी का फोर बेरिंग डिडक्ट किया। सो ए बी का फोर बेरिंग कितना आता है, 80 डिग्री 80 10 डिग्री मिनट। सो 10 मिनट्स 10 minutes. Then I will get included angle at A, it as 50 degree 5 minutes. Understood? ओके मैडम थैंक यू मैडम। Okay. Okay. So what about the E included angle at E? Everyone understood how we got that included angle at E? Yes, ma'am. Okay. Thank you. See here, you cannot able to see, find out that included angle without drawing an image of the bearings. So it will be helpful if you will draw the image of your traverse before start calculating on the numerical. ठीक है, तो आपको हमेशा वही करना है कि it's better to develop the image of that traverse and then start working on that image, so that you will get an all the readings as well as all the angles as a corrected one. ठीक है, तो अगर ये इमेज को स्किप करके अगर आप ये फाइंड आउट करोगे तो ई का आपको एंगल ही करेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा पहले हमेशा पहले डायग्राम में ड्रॉ करो एंड आफ्टर दैट स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट डायग्राम। ठीक है, now what we did, we found out the included angle at each station. ठीक है, now we don't know whether that angles are correct or not. So what we have to do, we have to add all that angles together. So here on the next screen, I added that angles together and I got the addition of that all the angle, it as 539 degree 35 minute. Okay, which is given on the screen. But I know the theoretical summation of that 5 angles. तो वो क्या आती है, 2n minus 4 into 90 degree is the formula. ठीक है, and from that I got the summation, it as a 540 degree. But मेरा summation कितना आता है, 539 degree आता है. So that means whatever the A bearings I found out at every stations are not the correct. Okay, ये करेक्ट नहीं है तो मुझे वो बेरिंग सबके करेक्ट करने हैं। तो उन्होंने क्या पूछा था, कंप्यूट द इंटीरियर एंगल एंड करेक्ट देम फॉर ऑब्जर्वेशनल एरर। सो आई कंप्यूटेड ऑल द इंटीरियर एंगल्स and I found out the error in that summation of all the angles, वो find out किया। अभी मुझे क्या करना है, correct them for the observational error। तो मुझे वो जो observational error जो अपना आया था, तो उसको मुझे करेक्ट करना है। ठीक है, तो now I got the, so first I will find out how much is the error. So how I will get that error, it should always be in a formula of observed reading minus corrected reading. ठीक है, तो मेरा observed reading क्या था, 539 degree 35 minutes and the corrected reading क्या है, 540 degree. So I deducted them and I got my error it as a minus 25 minute. Okay, so now this minus 25 minute is the error which will come. It is the, you can say ki cumulative effect at all the stations. So what I have to do, I have to distribute it at all the stations. तो मैं उसको divided by 5 करूंगी. Okay, so ये जो 25 का जो error था, so उसको मैं divided 5 करूंगी and I will get the error at each station it as a uh, uh, this is now, sorry, see, this is the error which is with the minus sign, and now I will get the, after dividing it, I will get the correction, it adds up with a plus sign, and this correction is 5 minutes at each station. ठीक है,
यहाँ तक सबको समझ में आया? +5 मिनट्स कैसे आए? नो मैम। Yes, ma'am. ओके, यहाँ तक 5:40 तक समझ में आया सबको? यस मैम। ओके, Yes, तो ma'am. 5:40 के बाद क्या किया अपन ने? देखो, ऑब्जर्व हमेशा, अभी देखो, दिस इज व्हाट द एडिशन ऑफ ऑल द इंक्लूडेड एंगल व्हिच वी गॉट, बट एक्चुअली वो कितना होना चाहिए? 540 होना चाहिए, ठीक है? सो दैट मीन्स अवर ट्रैवर्स इज हैविंग सम ऑब्जर्वेशनल एरर, कुछ तो एरर है अपने ट्रैवर्स में, तो वो क्या है, कितना एरर है? तो वो कितना है? तो ऑब्जर्व रीडिंग माइनस कैलकुलेटेड रीडिंग, ठीक है? तो ऑब्जर्व रीडिंग कितना आता है? 539 आता है, माइनस करेक्टेड कितना आता है? 540 आता है। ओके, सो यू कैन से दैट कैलकुलेटेड माइनस करेक्टेड, ठीक है? तो कैलकुलेटेड कितना आता है? 539 आता है, करेक्टेड कितना आता है? 540 आता है। सो आई डिडक्टेड दैट 539 minus 540 and I got the error it as a -25 डिग्री। तो क्या है? -25 डिग्री एरर है, मीन्स हर स्टेशन, मीन्स मेरा मेरा जो रीडिंग्स है, टोटल समेशन है, वो लेस है ऑफ बाय हाउ मच अमाउंट? बाय 25 मिनट्स। द एरर माय एडिशन ऑफ ऑल द एंगल इज लेस, इतना लेस है मेरा, उतना एरर आता है, उतना कम आ रहा है मेरा रीडिंग्स, ठीक है? सो वो एरर अगर मुझे निग्लेक्ट करना है, रिमूव करना है, व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू चेंज द साइन एंड आई हैव टू मेक इट एज अ प्लस। तो मुझे +25 का एरर हर जगह पे ऐड करना पड़ेगा टू गेट इट, टू मेक द एडिशन इट एज अ 540। ओके, तो हर जगह पे +25 नहीं ऐड करना है। दिस इज द समेशन, दिस इज द टोटल एरर I got at for my traverse, ठीक है? तो ये जो एरर आया है, सो आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट इट एट ईच एंगल, ओके? सो दिस इज व्हाट द एरर, एंड द करेक्शन क्या होगा? +25 होगा, ठीक है? सो +25 मिनट इफ इट इज अ करेक्शन, सो दैट +25 आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग ऑल द 5 एंगल्स। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 5 करूंगी। क्यों 5 किया? क्योंकि मेरे 5 ही एंगल्स है। अगर मेरा 6 एंगल आते तो आई डिवाइडेड इट विद द 6, ठीक है? तो ये 25 को मैंने डिवाइडेड बाय 5 किया एंड आई गॉट द +5 is the correction which I have to add at every angle. Understood? समझ में आया क्या? Yes, tell me. यस मैम। पक्का सबको समझ में आया? Yes, still some are having doubts. Okay. So since no are Can you take, no, yes, tell me. ma'am, before slide, can you take for 2 Previous minutes? slide. Yes, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. Okay. ठीक है। So ये समझ में आया करेक्शन +5 कैसे आया? Yes, ma'am. Okay. So what we did, sorry. Now what we will do, we will add these 5 minutes in each angle and we will find out the corrected angles. ठीक है? तो हर जगह पे मैंने 5 minutes add किए। The previous A angle was 50 degree 5 minutes, जिसमें मैंने 5 minutes add किए and now the corrected included angle A, it has 50 degree 10 minutes. ठीक है? Similarly, I did it at every angle or every station and I got the corrected included angles. ठीक है? तो हर जगह पे मैंने 5 मिनट्स ऐड किए हैं। तो 40 मिनट्स का 45 मिनट्स हुआ है, 0 का 5 मिनट्स हुआ है, 40 का अगेन 45 मिनट्स हुआ है एंड 10 का 15 मिनट्स हुआ है, ठीक है? तो ये हुए सारे इंक्लूडेड एंगल्स। तो उन्होंने क्या बोला था? नाउ वी विल सी अगेन द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, कंप्यूट द इंटीरियर एंगल, करेक्ट देम फॉर द ऑब्जर्वेशनल एरर। तो अपन ने वो एरर निकाल के उनको करेक्ट किया, assuming the observed bearing of line CD to be a correct,
तो उन्होंने क्या बोला है उसके आगे कि ये अज्यूम करो कि CD के जो बेरिंग्स है दैट आर करेक्ट, टू बी करेक्ट एडजस्ट द बेरिंग ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो उन्होंने क्या बोला है, ये CD के अभी बेरिंग्स करेक्टेड है तो बाकी सबके बेरिंग्स अभी एडजस्ट करो और द करेक्ट करो, ठीक है। सो ये फर्स्ट जो था दैट वी सॉल्व, we found out the corrected included angle, now we will find out the corrected bearings. So now it is mentioned in the statement itself, the CD bearings are the corrected bearings. So CD bearings means 170 degree is corrected, 350 degree is corrected, ठीक है। Then C के यहाँ का 301 degree is corrected and 230 degree is corrected. So we can start working either from this or either from this. Let's see, मैंने कहाँ से start किया था, CD 350, ओके। तो BC 350 से मैंने स्टार्ट किया था, 350 मीन्स BC 350, ओके। ओके, आई स्टार्टेड इट फ्रॉम हियर, ठीक है। 350 से स्टार्ट किया था, 350 डिग्री 50 मिनट्स, तो आई टुक दिस एज अ करेक्टेड बेरिंग, ओके। नाउ वी विल सी, तो नाउ हाँ 350 लेंगे, ठीक है। CD back bearing is 350, so this is 350 I used for you used it as a as a corrected reading and I started from that. तो ये आता है 350, ओके। उसमें अगर मैं इंक्लूडेड एंगल ऐड करती हूँ, 120 अगर मैं सॉरी 120 अगर मैं ये सबट्रैक्ट करती हूँ, बिकॉज ये माय आई एम मेजरिंग दिस एंगल इट फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, तो नॉर्थ से ये वाला पूरा होगा 350 डिग्री। तो 350 में से इफ आई जो कुछ भी इंक्लूडेड करेक्टेड एंगल है जो अभी अपन ने फाइंड आउट किया था वो अगर मैं डिडक्ट करती हूँ, देन आई विल गेट द 4 बेरिंग ऑफ CD, ओके, सॉरी DE, 4 बेरिंग ऑफ DE। तो ये आता है, see what I did, bearing of a DC, so bearing of a DC means back bearing of a CD मैंने लिया, back bearing of CD लिया, that is 350 डिग्री, जिसमें मैंने माइनस किया included angle at D, वो माइनस किया and I got the bearing of DE। तो bearing of DE मुझे कितना मिला, 230 मिला। so bearing of D is 230, okay, 230 डिग्री 5 मिनट्स, बट द प्रीवियस कितना है देखो, is 230 degree 5 minutes, the previous is 350 degree, sorry 230 degree 10 minutes। देखो यहाँ 230 degree 10 minutes था previous और मुझे अभी मिला है 230 degree 5 minutes, ठीक है। So I got the corrected bearing of DE as a 230 degree 5 minutes. Now I will minus 180 to get the back bearing of DE। तो बैक बेरिंग ऑफ डी कैसे मिलेगा, ये 230 डिग्री में मैं 180 माइनस करूंगी तो मुझे बैक बेरिंग ऑफ डी ये वाला मिलेगा 50 डिग्री 5 मिनट्स, ओके। सो डी के यहाँ मुझे बैक बेरिंग मिला 50 डिग्री 5 मिनट्स, तो मेरा ये भी करेक्ट हुआ 50 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया? नहीं मैडम, Yes, ma'am. फिर से आप बता पाएंगे? कौन सा नहीं समझ में आया? 230 डिग्री समझ में आया? मैडम वो 350 डिग्री माइनस 120 मतलब बेरिंग ऑफ डीसी, वो मतलब बेरिंग ऑफ डी नहीं कुछ समझ आया। ओके, वो वो नहीं समझ में आया, ठीक है ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो ये यहाँ तक सबको समझ में आया कि एडिशन दीज आर द करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल्स, ठीक है। यस तो ये मिस, हाँ करेक्टेड इंक्लूडेड एंगल है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि CD का जो स्टेशन है दैट इज फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन, ओके। तो ये CD स्टेशन इज फ्री फ्रॉम द लोकल अट्रैक्शन और no, the reading of CDs are corrected, not sorry, the bearings of line CD are corrected, okay। इतना ही बोला है, stations are not free from local attraction but the reading CDs are corrected, so you can either go with the CD के यहाँ के bearing 4 bearing और CD का back bearing से आप start कर सकते हो, ठीक है, because this the bearings of this CD line is corrected।
तो इधर आप 4 बेरिंग ले लो या बैक बेरिंग ले लो टू स्टार्ट योर वर्क। तो मेरे कैलकुलेशन अभी बैक बेरिंग से है, सो आई विल यूज दैट बिकॉज इट विल इजियर मी टू एक्सप्लेन टू यू। ठीक है, तो सीडी का मैंने यहाँ बैक बेरिंग दिया है जो आता है 350। तो 350 अगर मेरा करेक्टेड है, सो आई विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट ऑल अदर बेरिंग्स फ्रॉम दैट बैक बेरिंग ऑफ सीडी। ठीक है, तो मैंने 350 लिया, तो सीडी का 350 ये आ जाएगा। यू कैन सी इट ऑन द इमेज ऑफ दैट ट्रावर्स। तो वहाँ डी का मेरा ये 350 एंगल आता है, तो वो करेक्टेड है। एंड इंक्लूडेड एंगल भी अपन ने करेक्टेड फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, तो फिर वो इंक्लूडेड एंगल में डिडक्ट कर दूंगी इसमें से, देन आई विल गेट द 4 बेरिंग ऑफ डी एज अ करेक्टेड वन। तो मुझे यहाँ डी का 4 बेरिंग करेक्टेड मिला जो आता है 230 डिग्री 5 मिनट्स। ठीक है, तो ये समझ में आया 230 डिग्री 5 मिनट्स कैसे आया। दिस इज द 4 बेरिंग ऑफ डी इज 230 डिग्री 5 मिनट्स। ओके, यू कैन सी एट द डी स्टेशन जहां आपका बैक बेरिंग आता है ये वाला, जिसमें से ये इंक्लूडेड एंगल डिडक्ट किया एंड वी गॉट द डी का 4 बेरिंग। नो प्रॉब्लम। सी क्या मेंशन किया था कि सीडी के बेरिंग्स करेक्टेड है, तो दिस इज माय सी। सो ये मेरा सीडी लाइन है। ठीक है, दिस इज ई पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज ई। ये आएगा मेरा रेफरेंस मेरिडियन जहाँ से मैंने रीडिंग लिए थे। ओके, तो सीडी व्हाट इज गिवन इन द स्टेटमेंट कि सीडी बेरिंग इज करेक्टेड। ठीक है, तो सीडी का बेरिंग मेरा कितना आ रहा था, इट इज दिस वन। ये आ रहा था मेरा 350 डिग्री और सम मिनट्स। ठीक है, 350 डिग्री इज द करेक्टेड रीडिंग। तो मुझे क्या करना है, what they ask, find out all other readings। तो ये करेक्टेड है, इवन दिस वन इज करेक्टेड। 3 जो कुछ भी आएगा वो 170 डिग्री था, वो 170 डिग्री। सो ये 170 डिग्री इज आल्सो अ करेक्टेड रीडिंग। ठीक है, एंड these all included angles are also corrected which already we found out। तो जो मैंने ब्लू मार्क से डिस्प्ले किया है स्क्रीन पे, so that all readings are corrected, these 350 170 and all included angles are corrected। and what they ask us to find out the all other bearings। तो बाकी सब bearings आपको find out करने, तो कैसे करोगे, 350 डिग्री है, ये 350 डिग्री है, and this is again this included angle is also a corrected angle। तो ये वाला इंक्लूडेड एंगल भी मेरा करेक्टेड एंगल है। तो ये 350 डिग्री में से अगर मैं इतना एंगल डिडक्ट करती हूँ तो मुझे मिलेगा ये वाला एंगल, दिस वन। ओके, आई विल गेट दिस एंगल, ये एंगल मुझे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का एंगल मिलेगा, और वो क्या होगा, 4 बेरिंग ऑफ डीई। ओके, तो अपन क्या करेंगे, 4 बेरिंग ऑफ डीई फाइंड आउट करेंगे। तो 350 डिग्री माइनस इंक्लूडेड एंगल एट डी विल गिव्स मी डी 4 बेरिंग ऑफ डी। ठीक है, you will see it on our PPTs। ठीक है, देखो DE का bearing 350 डिग्री and included angle at D is 120 degree। So when I find out the difference between these two, so I will get the 4 bearing of D, it has a 230 degree 5 minutes। Okay, so 230 degree 5 minutes is the 4 bearing of D। I can write it here as a 4 bearing of D as a 230 degree 5 minutes। Understood? मैडम पर सीडी का सिर्फ उन्हें पता है ना कि सीडी करेक्टेड है, तो हमने फिर से क्यों सीडी का निकाला है, डायरेक्ट ई ए और बी का निकालना चाहिए ना। का कहाँ निकाला अपन ने, डी का निकाला, डीई का निकाला।
इस पर डी एंगल भी है ना, करेक्टेड है ना ऑलरेडी, सी और नहीं, डी see, एंगल करेक्टेड है। here whether it is mentioned that the stations are free from local attraction ऐसे बोला है क्या? नहीं ना, यहाँ क्या नहीं बोला नहीं, है? the assuming the observed bearings of line CD to be a corrected, मीन्स CD का डिफरेंस 180 आ रहा है, तो CD के bearings are corrected, so we will start working from that CD bearings. Okay, ये दोनों bearings corrected है, not these two stations are free from local attractions. ठीक है, तो ठीक है, तो CD के ही लेंगे अपन, not we will not even consider this one as well as this one. Only these two are the corrected that we will assume and will start working from that one. ठीक है, तो फिर मैंने वही करेक्टेड लिए, 350 वाला जो करेक्टेड बोला था वही लिया, एंड उसमें से मैंने 120 इंक्लूडेड एंगल डिडक्ट किया, एंड आई गॉट द 4 बेरिंग ऑफ DE. ओके समझ मैडम, में आया? थैंक यू मैडम। हाँ मैडम। ओके, ठीक है। नाउ DE का 4 बेरिंग मिला, तो अभी बैक बेरिंग DE का कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 डिडक्ट कर देना है, ठीक है। So same way I did it over here. I deducted the 180 from that DE1. ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखेगा, उसमें 180 डिडक्ट किया, एंड आई गॉट द करेक्टेड बैक बेयरिंग ऑफ DE as a 50 degree 5 minutes. ठीक है, now I corrected bearings of DE. Now I proceed towards the EA line. Okay, तो EA लाइन का 4 बेरिंग अगर मुझे फाइंड आउट करना है, 4 बेरिंग, ठीक है, सो वी विल सी अभी EA लाइन का 4 बेरिंग फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे, दैट आई विल शो यू, जस्ट 1 सेकंड. नाउ सी, अभी is this paint is visible? यस मैडम। Okay, तो अभी सी, this bearing is known to me which is corrected, ये वाला DE का बैक बेरिंग करेक्टेड है अभी मेरे पास, जो मैंने अभी फाइंड आउट किया है. ओके, एंड दिस एंगल ब्लू लाइन से जो मार्क किया है वो एंगल भी मेरे पास है, ठीक है. दीज टू आर द करेक्टेड एंगल्स आर विथ मी. ओके, आई हैव टू फाइंड आउट दिस वन. ये मुझे फाइंड आउट करना है, जो मैंने रेड मार्क से यहाँ हाईलाइट किया है, तो EA का बेरिंग मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो कैसे अपन ये फाइंड आउट करोगे? टेल मी हाउ वी विल फाइंड आउट दैट. बैक बेरिंग ऑफ EA माइनस एंगल ऑफ E। EA का बैक बेरिंग ही फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? We have only these two corrected values, one which is marked with the blue color, one which is marked with the green color. These two values are the corrected, and the red color marked value, that is the our, you can say ki unknown value, which we have to find out. Ma'am, included angle E and back bearing of DE. Yes, these Mine. two are corrected. Back bearing of DE and included angle is corrected. तो उसमें से आपको ये रेड कलर का फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करोगे अभी? Back bearing of included angle minus back bearing of DE. तो क्या मिलेगा आपको? जो रिमेनिंग एंगल मिलेगा वो 360 में से माइनस करना पड़ेगा, करेक्ट? ओके, सो नाउ यस, आपने करेक्टली यू आंसर्ड इट करेक्टली, ठीक है. आई विल टेल यू हाउ वी हैव टू फाइंड इट आउट. देखो, अभी ये जो आई विल enlarge that image. देखो, ये ED है and ये EA है. This is the E station, this one is the D station and this one is the A station. ठीक है, ये एंगल जो है वो करेक्टेड एंगल है, ओके, एंड दिस एंगल इज आल्सो द करेक्टेड एंगल.
ओके एंड रेड वन अपन को फाइंड आउट करना है, दिस रेड वन वी हैव टू फाइंड इट आउट। तो अभी मैं क्या करूंगी, ये जो इंक्लूडेड एंगल है उसमें से दिस वन आई विल डिडक्ट। ओके, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस ब्लू पार्ट आई विल गेट, sorry green part I will get after deducting the included angle from this one. Okay, ये क्या है, बैक बेरिंग ऑफ डी। सो बैक बेरिंग ऑफ डी में जब ई से इंक्लूडेड एंगल ई से डिडक्ट करूंगी तो मुझे ये ग्रीन वाला पार्ट मिलेगा। ठीक है, so this green part I will deduct it from 360 degree, then I will get this red value. Got it? Everyone ma'am. understood? Okay, so I will Yes, ma'am. I will create the formula here. मैंने क्या किया, बैक bearing of DE माइनस ये मैं करूंगी डिडक्ट किसमें से, इंक्लूडेड एंगल एट ई, ई में से ये बैक बेरिंग में डिडक्ट करूंगी। ठीक है, तो मुझे ये ग्रीन वाला वैल्यू मिलेगा और वो मुझे अभी, या फिर इसमें से ये डिडक्ट किया तो आपको माइनस साइन मिलेगा जो आप 360 में ऐड कर लो, नो प्रॉब्लम। तो ये जो मुझे आंसर मिलेगा, सो दिस आंसर आई विल डिडक्ट इट फ्रॉम 360 डिग्री। ओके, देन आई विल गेट दिस रेड वैल्यू। ठीक है, तो ये अब स्क्रीनशॉट निकाल के रखो, तो मैं ये ऑफ कर दूंगी, फिर अपन ये टैली करेंगे विद द अदर वन। देखो, सी ऑन द स्क्रीन नाउ, ये जो अपना बेयरिंग ऑफ ईडी था, दिस वन, ये उसमें से एंगल डिडक्ट किया, फिर उनको माइनस साइन मिलेगा और वो माइनस साइन 360 में ऐड किया, देन वी विल गेट द फोर बेयरिंग ऑफ ईए। ठीक है, तो मैडम स्क्रीन विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है आपको पीपीटीज? नहीं ये जो मैडम, मुझे तो नहीं दिख रहा मैडम, है। अभी आया सर मैडम, Visible है, visible है। अभी आया। It is because of network problem. Let it, I will explain it again. देखो, ओके तो जो ओके अपन ने मैडम, अभी थैंक यू। हाँ है, सो बेयरिंग ऑफ डीई माइनस 90 डिग्री किया, इसको माइनस किया, सो वी विल गेट द माइनस साइन हियर, उनको ये माइनस साइन मिलेगा। ओके, और उसमें 360 ऐड किया तो 310 डिग्री मिल जाएगा। द सेम जो वैल्यूज है, यू जस्ट पुट इन आवर फॉर्मूला, यू विल गेट द सेम आंसर। अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, सबको समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया 310 डिग्रीज? Yes, ma'am. और ओके, ठीक है, थैंक यू। नाउ we'll move towards the next angle. ठीक है, नाउ 310 डिग्रीज आपको मिला है, तो 310 डिग्रीज में से 180 डिग्री अगर आप डिडक्ट करते हो, सो यू विल गेट द फोर बेयरिंग ऑफ एई। तो यहाँ फोर बेयरिंग ऑफ एई आपको मिल जाएगा। फोर बेयरिंग ऑफ एई इज 130 डिग्री 50 मिनट्स। ठीक है, उसमें से फिर एंगल ऑफ ए अगर आप डिडक्ट करते हो तो आपको ए बी का फोर बेयरिंग मिल जाएगा। तो एंगल ए डिडक्ट किया तो आपको फोर बेयरिंग ऑफ ए बी मिल जाएगा। ठीक है, फोर बेयरिंग ऑफ ए बी, देन उसमें फिर आपको 180 ऐड करना है। यहाँ तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ओके, तो उसमें फिर 180 ऐड करोगे, देन यू विल गेट द बैक बेयरिंग ऑफ ए बी। ठीक है, बैक बेयरिंग ऑफ ए बी। And similarly, if will go up to D, so lastly you will again get the back bearing of CD it as a 350 degree 50 मिनट, जो यहाँ करेक्टेड बोला है, या फिर आपको डायरेक्ट अब यहाँ तक मिलेगा, जैसे आप
कैलकुलेशन करते जाओगे, so the last answer will be 350 degree 50 minute, which will be as a check for you. You got the same reading as which is mentioned in the statement that